بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان اٹھایا اللہ نے ان لوگوں کے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ سے ملنے کو۔ قد کس کی علامت ہے؟ بات کے سچے ہونے کی، پختہ ہونے کی، ماضی قریب کی، ماضی کی۔ بالکل، محمد احمد صاحب نے جواب صحیح دیا، ماضی۔ جب ماضی مصغر ہے نا جی، علامت جو ہے نا 11 علامت ہے نا ماضی فعل کی، یہ فعل کی علامت ہے ماضی قریب کی ہے جی، فعل کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے بے شک۔ علامت ہے فعل کی، مصغر بھی کہہ سکتے ہیں، مصغر۔ اسم کی علامت کتنی ہے؟ 11 ہے، 11۔ فعل کی 8 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات، یعنی آخرت کو جھٹلایا۔ ملاقات کہاں ہوگی؟ آخرت کے دن۔ سب سے آخرت میں سب سے مزیدار چیز جو ہوگی وہ اللہ کی ملاقات ہوگی۔ 8 دن کے بعد ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو پورا ہفتہ پھر اسی دیدار میں مگن رہیں گے لوگ، چاہت کریں گے کہ اگلا غالباً جمعے کا دن ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ نصیب والوں کے انشاءاللہ ہم سب اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے۔ آمین۔ جب اذا جاءت الساعہ، جب آئے گی قیامت بغتتاً، اچانک، قالو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہ، کہ ہم نے کوتاہی کر لی، یعنی کہ پہلے وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ ہو نہیں سکتی، اب وہ آ گئی قیامت، اب حسرت کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اوزارہم، اپنے بوجھ، یعنی گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا سنو ساء ما یزرون، کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سا کیا ہے؟ جی جی رضوان بھائی، یہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت، حرف استقبال ہے حضرت، یہ حرف استقبال۔ استقبال۔ اور کوئی بتائے؟ حارث بتائے سا کیا ہے؟ جی مخدوم نے صحیح جواب دیا، یہ فعل ضم ہے۔ افعال مد و ضم پڑھے نا آپ نے؟ افعال، جی نواز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افعال مد و ضم کتنے ہیں؟ جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا۔ جعفری صاحب میں نے عرض کی، جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا، بیچ میں نہیں بولے گا کوئی بھی۔ جی نواز صاحب، یاد نہیں ہوتا۔ ہاں اب پیچھے سے ریپیٹ کرتے رہے نا کچھ دن تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ ہاں تو سب سے پہلے ہینڈ ریز کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ نوشین بن، ہاں جی کتنے ہیں؟ حضرت 4 ہیں، بے سا، ادا، سا، ایسے کوئی ہے، حضا، اس طرح سے کچھ ہے کیا؟ ہاں جی، اب جعفری صاحب حبذا نعمہ، نعمہ، یہ نو امیر کو پی لیں نو امیر جو نا پینی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، ہاں وہ اس طرح کے کیسے پیئیں گے؟ حضرت دوہرائی بار بار، جھول کے، گھول کر پانی میں گھول کے پی لیں گے۔ وہ نا آج ایک بندہ بات بتا رہا تھا، کہتے علم اور آگہی سے بندے کو بہت کچھ فرق پڑتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگلے بندے نے، چودھری صاحب تھا، اس نے کہا علم و آگہی کیسے ہوتی ہے، کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا جی علم و آگہی ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا جی میرے گھر میں کتا ہے۔ اس نے کہا جی اس کا مطلب آپ کے گھر میں جانور بھی ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل جانور بھی ہیں، کتا اس لیے رکھا تھا کہ، تو اس نے کہا جی اس کا مطلب آپ کے کھیت بھی ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل کھیت بھی ہیں۔
اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمینوں پر کام بھی کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے والدین بڑے نیک تھے، انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی؟ ان کا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان کا جی اس کا مطلب آپ نے محنت بھی کی اور آپ یہاں تک پہنچے؟ ان کا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے ساری چیزیں بتا دی؟ ان کا جی علم و آگہی سے، مجھے علم اور آگہی آئی، فلسفہ آیا ہے، کچھ چیزیں سمجھ کے مجھے پتا چل گیا۔ اس نے کہا آپ نے 15 سال لگا دی، مجھے تو 2 منٹ میں پتا لگ گیا کہ علم و آگہی کیا ہوتی ہے۔ تو اگلے دن وہ چودھری صاحب نکلے اپنے گھر سے، یار میں بھی لوگوں کو علم و آگہی سکھاؤں کیا ہوتی ہے۔ وہ گیا پورا گاؤں گھوم کے آ گیا، کوئی بندہ اس کو اس طرح کا نا ملا نہیں۔ خیر تو وہ جب واپس آیا تو اس کے نوکر نے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ تو نوکر کو کہنے لگا بھئی آپ پڑھا کرو، علم و آگہی حاصل کرا کرو۔ انہوں نے کہا جی سر یہ علم و آگہی کیا ہے؟ کہتے جان پہچان، فلسفہ، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا جی کیسے پتا چلتا ہے یہ؟ اس نے کہا اچھا بشیرے مجھے یہ بتاؤ تیرے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا جی کتا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب، اس نے پھر ریورس گیئر لگا دیا نا، جس کے گھر کتا نہیں ہوگا اس کے پاس زمینیں بھی نہیں ہوں گی، کام بھی نہیں ہوگی، اس کے والدین بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا بشیرے کل تو نے کام پہ نہیں آنا۔ اس نے کہا سر جی میری غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا علم و آگہی سے پتہ چل گیا کہ آپ کے والدین ٹھیک نہیں تھے، وہ نیک نہیں تھے۔ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ یہ علم و آگہی وہ ہوتی ہے جو عارضی طور پر ہوتی ہے، 2 دن میں سیکھی جاتی ہے۔ جو علم و آگہی جو آپ بار بار اس کو گھول کے پیتے ہیں نا، صحیح، آپ کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہے، 1.25 گھنٹہ دینا ہے، ظاہر ہے یہ ٹائم نکالنا بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور مستقل طور پر چلنا ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ماشاءاللہ کتنے ساتھی تھے، آگے کے بکھر گئے، آپ آگے رہ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ چیزیں بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم و آگہی کہ آپ دوبارہ آپ کتاب کھولیں اور آپ جو ہے نا وہ دوبارہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہاں اچھا یہ چیزیں تھی۔ اللہ سا ما یزید، سا بے سا قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 88 سے 21 ہو گئے، 88 نہیں 96 تھے میرے خیال میں، پہلی کلاس میں میرے پاس ابھی نہیں استاد صاحب نہیں 100 سے اوپر ہو گئے تھے جب ہم فرسٹ ٹائم کلاس لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی ہوتا ہے، چلے تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ اب جب مدارس میں ہم پڑھتے تھے نا تو کافی لڑکے ہوتے تھے، اینڈ پہ جا کے 5-6 بج جاتے ہیں، 6 بج جاتے ہیں۔ تو اس جی طرح یہ ثابت قدمی اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ لگے رہیں۔ جی بالکل، پانی نکل کے دودھ بچہ خالص۔ تو اپنے دوستوں سے آپ رابطہ رکھیں، جو مثلاً اب ذوالفقار صاحب سے رابطہ رکھیں، وہ تو ہمارے پکے بھائی ہیں نا۔ تو جی اسی بالکل طرح نواز صاحب آپ نے ان سے رابطہ رکھنا ہے، کیا نام ہے وہ جو ہمارے برہان بھائی ہیں، کیا کچھ دن آئے پھر چلے گئے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ارد گرد والے آیا تھا پڑھنے کے تھے، ہاں جی انہوں پڑھنے کے تھے، میرے کو آڈیو ڈالے تھے کل، اچھا وہ ٹائم نہیں مل رہا اس لیے نہیں آ رہے تھے کلاس میں۔ اب وہ اصل میں گھر میں آئے ہوئے ہیں نا، تو گھر میں مصروفیات ہیں۔ جب وہ جائیں گے دبئی تو پھر ان کے پاس وہ ہوگی، گاڑی ہوگی اور ہم ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ چلیں آپس میں جو آپ نواز صاحب کے گروپ میں وہ ان سے رابطے میں رہیں، تھوڑا بہت ڈسکس ہوتی رہے۔ جو بہنیں نوشین ہیں وہ ان سے رابطے میں رکھیں۔ جی چلو میں نے شفق بہن کو کیا تھا میسج وائس کیا تھا 1-2 دفعہ، جی وہ شاید کچھ ہیں اس طرح سے، ان کی بھی مصروفیات ہیں۔ ہاں وہ ہے، ان کا ہے شوق تو بڑا ہے شفق بہن کا۔ جی وہ میرے خیال میں حج پر گئی تھی، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا وہ بزی ہو گئی ہیں۔ جی بچوں میں ان کا مسئلہ تھا کچھ، ٹھیک۔ پڑھائی کا، پک اینڈ ڈراپ کا، اس وجہ سے تھوڑا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ زندگی نہیں مگر کھیل کود اور تماشا ہے۔ تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے نا ہمیں جو ملی ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، پہلا اور آخری چانس ہے۔ ہم نے کوئی 7 جنم نہیں رہنا ہے۔ جعفری صاحب کے محلے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 7 جنم رہنا ہے، ہم نے کوئی نہیں رہنا۔ جی بالکل حضرت، ہم 7 ایک ہی جنم جنم جینا ہے۔ محلے میں
जो दुआ हमारे तरफ भी है बहुत सारे। रिजवान साहब की तरफ भी होंगे 7 जन्म वाले। जी हजरत, वो अपने ख्यालों में केवल 7 जन्म रहेंगे। तो हमारा एक ही जन्म है। तो मैं इस बात में बड़ा खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा पहला ही जन्म है और आखिरी जन्म है। इस पहले और आखिरी जन्म में अल्लाह ने हमें मुसलमान किया, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया, जो हमारे सैयदुल अंबिया अल मुरसलीन है रहमतुल लिल आलमीन, उनका हमें उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। उस रहमत आलम ने बताया था कि आखिरी ज़माने में फ़िरके होंगे, उनमें से एक फ़िरका ही जो है वो हक पर होगा। और वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं अहले सुन्नत व जमात के, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं और सहाबा के तरीके पर, ताबईन के तरीके पर, औलिया किराम के तरीके पर हैं। अन अमल्ला अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह ने इनाम फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम मांगते हैं ना हमें सीधा रास्ता चला, तो सीधा रास्ता किनका है? उनका है। कौन है वो? अन अमल्ला, अन नबी, नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन, नेक लोग भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे मोहब्बत करते हैं। सुन्नी अल्लाह ने हमें बनाया अहले सुन्नत, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करोड़ा एहसान है। तो हर बार आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफिल पढ़ा करें कि अल्लाह ने हमें इस जिंदगी में ये दिया और फिर हमें पढ़ने और पढ़ाने का मौका दिया, दीन सीखने सिखाने का मौका दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा, तवज्जो की होगी, गौर किया होगा कि पहली वही नाजिल हुई इक़रा से हुई है, नमाज से नहीं हुई, ज़कात से नहीं, हज से नहीं हुई, इक़रा से हुई। क्योंकि इक़रा होगा फिर नमाज भी सही आएगी, हज भी होगा, फिर ज़कात भी होगा। ठीक है जी। तो मैं जब अपने गांव से मैं शहर गया ना कराची, तो मैंने वहाँ इरादा कर लिया, मुझे वहाँ फिर इल्म आ गई बड़ी थोड़ी सी। तो मैंने कराची में 7 साल रहा हूँ कराची में। तो मैंने सोचा कि यार पता चला कि अब इस दिन में, इस लाइन में, यानी दीन की लाइन में एक हाफिज होता है, फिर कारी होता है, एक आलिम होता है, एक मुफ्ती होता है। हमारी दीन की जो लाइन है इसमें 4 चीज़ें होती हैं। तो मैंने ठान ली कि मैंने चारों सीखनी है। मैं हाफिज तो था पहले, फिर मैंने किरात शुरू कर दी। मैंने 1 साल का कोर्स किया, फिर मैंने कहा और इसको करना, फिर मैंने 2 साल का कोर्स और किया, मुकम्मल किरात का कोर्स मैंने किया। फिर मैंने कहा मैंने आलिम बनना है, तो फिर मैंने आलिम का कोर्स शुरू किया 3 साल कराची में, फिर अगले जो है वो 5 साल वो फिर फैसलाबाद आ गया। फिर मैंने कहा मैंने मुफ्ती कोर्स भी करना है। वो चारों चीज़ें होती है ना, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने वो भी कर लिया। मतलब बताने का मकसद ये कि जब आप इल्म की राह में आते, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा यहाँ तक ज़हन था कि अगर मुझे रात को चौकीदारी करनी पड़ी और दिन को मुझे पढ़ना पड़ेगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है जी। तो मतलब ऐसा हुआ तो नहीं कभी, लेकिन मेरा यहाँ तक शौक था कि अगर मुझे रात को चौकीदारी करनी पड़ी ना और दिन को मुझे पढ़ना पड़ा, तो मैं अपने इखराजात पूरे करने के लिए ये भी काम करूँगा। तो फिर मैंने जब ये दर्स निज़ामी पढ़ा सारा कुछ, फिर मेरे ख्याल में आया ये यार ये यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वो भी जहां देखा जाए, वो भी पढ़ा जाए। फिर मैं यूनिवर्सिटी लाइन पे चला गया, वहाँ से फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से जो है ना वो मैंने एमए किया। ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एमए किया। फिर एक बीएड जो यूनिवर्सिटी है एजुकेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर मैंने बीएड किया। फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर मैंने एमफिल किया। तो इस तरह फिर लाइन आगे चलती रही है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब मैंने पीएचडी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीएचडी मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ आखिरी एक मरहला है, वाइवा होना है, ज़बानी जो होता है इम्तिहान, उसके बाद आपके उस्ताद डॉक्टर हो जाएंगे, डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज। आप पीएचडी में आपका क्या है, मतलब किस में? हदीस में, हदीस के टॉपिक पे मेरा है, हदीस में। मेरा जो फेवरेट जो है ना वो मेरा टॉपिक हदीस पर है, तो उसी हदीस पर, हदीस के, और वो उसमें बड़ा मजेदार चीज है इंशाल्लाह, वो आपको मैं पूरा, जो एक वहाबी आलिम है जुबैर ज़ई, ठीक है, उसने हदीस पे काम किया, लेकिन अपनी मनपसंद चीजें उसमें काफी घुसेड़ी हैं, अपने उसूल तोड़ के ना हदीसों को सही और ज़ईफ कहा है। तो मेरा काम उसी पर है कि इसने ज्यादती की है हदीसों के साथ और उसूल के साथ। सही। उसका मेरे टॉपिक है थीसिस का, उसके मामूल बिया अहादीस पर जुबैर अली ज़ई के एतराज़ात का तनकीदी जायजा। मामूल बिया अहादीस यानी जो सहाबा अमल करते रहे, ताबईन, तबा ताबईन, मुसलमान की अहादीस करते रहे, इस बंदे ने उन मामूल बिया अहादीस को अपने उसूल, जाली उसूलों से कैसे रद्द किया,
मैं अब इसका रद्द करने वाला हूँ। तो मैंने उसकी अच्छी क्लास ली है। जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब, ये इसमें ना एक मेरी ख्वाहिश भी है वैसे। जी 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 फरमाएं। आप कोई हमारी भी कोई ऐसी अहले सुन्नत की एप्लीकेशन कोई होनी चाहिए जिसमें सही और ज़ईफ का जो हुक्म है ना वो अहले सुन्नत का सही लगा हो। अब अक्सर नौजवान जो है ना वो इस्लाम 360 ऐप या मकतबा शामिला जो है वो देखते हैं तो उसमें वहाबियों की तहकीम लगी होती है। तो हमारी कोई काश अहले सुन्नत की एप्लीकेशन बन जाए, आप कोई ऐसा कदम उठा लें, अल्लाह करे। असल में ये काम बहुत बड़े इदारों का है, बहुत बड़े बड़े इदारों का काम है, क्योंकि हदीस पर काम करना उसके लिए आपको टाइम चाहिए। बड़े इदारे इसकी जो है वो सरपरस्ती करें, फिर उलमा बैठ के काम करें। जी ठीक है। अब मेरी पुरानी एक ख्वाहिश है कि मैं बैठ के काम करूं, मुझे सारा दिन ये काम करना पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं फैसलाबाद में तकरीबन 20 साल से मैं रह रहा हूँ। ठीक है ना। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे वहाँ एक जगह जाना हुआ। वो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप सुन्नी वहाबी फिर कम होता है, फिर आपको ये होता है कि आपको काम करना पड़ता है, कि आपने काम करना है। तो वहाँ एक असरी साहब हैं, मौलाना असरी हैं फैसलाबाद में, इरशादुल हक असरी। तो उनकी लाइब्रेरी में मैं जाता था और मैं देखता था वो करते क्या रहे। वो वहाबियों की लाइब्रेरी है। तो मुझे बाद में पता चला एक और जगह से कि इसको 20 साल हो गए इस मौलाना असरी को, कि इसको इनके एक मसलक के एक बंदे ने कहा था कि मौलाना साहब आप बैठ के काम करें, आपकी जरूरत हम पूरी करेंगे। इरशादुल हक असरी को उनके वहाबी एक बंदे ने कहा, जिसको बिजनेसमैन था, जिसके पास अल्लाह ने पैसा दिया, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो है बैठ के काम करें। अब मैं जब जाता था ना सुबह, कभी सुबह जाना कभी शाम को जाना, यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट तैयार करनी है, तो मैं उसको देखता था। वो सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे आता था और शाम 4 बजे सारा दिन असरी साहब उसी दफ्तर में होते थे, किताबें पढ़ते थे, लिखते थे। उनको उनके मसलक के बंदे ने उठा लिया कि भाई आप काम करें और आपकी जरूरत हम पूरी करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि अगर इस तरह के हम लोग कुछ हो ना हमारे, कि हम बैठ के काम करें। ये काम ऐसे होगा कि ये आप जो कह रहे हैं ना, ये काम खुल के होगा कि बंदे बैठे काम करें और फिर ये इस तरह हमारे दोस्त बने। तो मैं इंशाल्लाह एक वक्त आएगा सारे ये मसाइल होंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि इस तरह के जरूर इंशाल्लाह दोस्त होंगे कि हम बैठ के काम करें और हमारे जो बिजनेसमैन है वो पीछे हमें सपोर्ट करें। देखिए आपने जब दीन को काम टाइम देना है ना, ये पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा आपको। सुबह शाम आप ये काम करें, फिर आपको आगे जो है वो काम मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो मैं मिर्जा के खिलाफ काम करता हूँ, ये बड़ा काम है। सबसे पहले मैंने इसके खिलाफ काम किया और इसको पहले मैं सुनता हूँ, मैं उनको सुनता हूँ, इसकी वीडियो सुनता हूँ, उसको लिखता हूँ, लिख के फिर उनको वो उसके नोट्स बनाता हूँ, फिर आगे जाके बनाता हूँ। तो इसके पीछे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की कि यार आप बैठ के काम करें। तो ये बहुत जी लतीफ नवाज साहब, मतलब सबसे पहले मिर्जा का रद्द करने वालों में आप ही है नहीं, जो उसके घर गए थे फिर वो आतमल के चक्कर दे के निकल गया। नहीं वो एक और मौलाना साहब थे, उसका नाम अच्छा। था रजवी साहब थे, मेरे ख्याल उनका नाम था हनीफ रजवी, कुछ और नाम, अमजद रजवी जी। आपसे भी तो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, मैंने वीडियो देखी है। जनाब अली, मैंने उसका पूरा चैनल मैंने डाउनलोड किया हुआ है और उसमें मेरे पूरा चैनल मैंने लिखा हुआ है कि इसकी वीडियो का नाम क्या है और ये कितने मिनट की वीडियो है। आपने फेसबुक पे देखा है, फेसबुक पे आप पे एक लड़के ने आपके बारे में कुछ ऐसे उल्टे सीधे बात बोल रहे थे। मैंने उनको मैसेज भी किए थे मैसेंजर पे। मैंने कहा आ जा तुम मुकाबला कर ले आके, फिर उसने जवाब ही नहीं दिया, वो ब्लॉक कर दिया मुझे। देखिए मैंने उसके 266 झूठ पकड़े। वो ऐसे तो नहीं होता, उसको आपको टाइम देना पड़ता है, उसकी 2-2-3 वीडियो देखनी पड़ती है, उसमें वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आपको ऐसे दोस्त होते हैं जो पीछे हेल्प करते हैं कि यार आप बैठ के काम करें, आपकी जो है वो हेल्प हम करेंगे, इस लिहाज से कि आप काम करें। मेरे पास मेरे मोबाइल था, उस पर वीडियो बनाता था। फिर एक इंग्लैंड से भाई थे, उन्होंने फिर मुझे कुछ पैसे भेजे, वो उनके कुछ पैसे थे, कुछ मैंने पैसे मिला के फिर मैंने कैमरा बनाया, कैमरा लिया। तो इस तरह फिर माइक लेते गए। अब ये जो लोग हैं ना, ये पूरा एक इदारा है, मिर्जा जहलमी है, इस तरह के लोग हैं, पूरा उनका एक इदारा, पूरा एक गैंग है। तो अकेला बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। जब हमारा एक पूरा एक झूठ एक मतलब गैंग बने, पूरा एक लोग बने, फिर अच्छी तरह से मैंने दावत इस्लामी वालों से काफी मरतबा बात की है कि देखें ये कितना उसके खिलाफ बोलता है, तो आप भी आए, कुछ लोगों को तैयार करें। ठीक है। अब मुझे पिछले दिनों गुजरात बुलाने के लिए, पंजाब में एक जिला है गुजरात, वहाँ उन्होंने मुझे दावत दी कि आप
मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं, आपने उसके खिलाफ एहतजाज करना कोई फायदा नहीं, आप उस मैदान में आए जिस मैदान में वो काम कर रहा है यूट्यूब पे, आप उलमा को पीछे आप उनको सपोर्ट करें और उनको कहें कि आपकी ड्यूटी अगर डेली आप एक वीडियो बनाएं, इस मैदान में काम करें। आप देखेंगे तो अब पिछले दिनों इसने रुजू रिकॉर्ड करवाए 10 रुजू, उसमें से 5 रुजू मेरी वजह से उसने कराए हैं, मैंने उस पर वीडियोस बनाई कि सर ये झूठ बोलता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि इस लाइन में आपको आना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, तो फिर वो जो हमारे हैं मुखिर हजरात वो उनकी फिर पीछे सपोर्ट करें कि भाई आप काम करें, हम पीछे खड़े हैं। तो मैं बता रहा था तो मुशाहिद सैयद मुशाहिद भी वो मिर्जा के खिलाफ बनाता है, अहले सुन्नत के आलिम है वो भी है, वो करते वो हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं, इस तरह नहीं हफ्ते चलेगा। में महीने में एक डालते जी महीने में एक डालते हैं ना, महीने में एक डालते हैं जी जी हाँ। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। वो जेल में हर दूसरे दिन वीडियो डालता है और एक बंदा महीने में एक डालेगा, क्या मुकाबला होगा? मुकाबला होगा डेली वीडियो डालने का। मेरे पास अब 2 चैनल है, मेरी कोशिश होती है एक चैनल पर एक दिन वीडियो जाए, दूसरे चैनल पर दूसरे दिन वीडियो जाए। तो अब इसके लिए आपको फिर होता है, फिर ये मेरे जहन में आया कि मैं ये क्लास पढ़ाऊं, एक तो थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी और दूसरा असल मकसद मेरा था कि मेरे कुछ ऐसे शागिर्द हों। मैं अकेला हूं, मेरे अगर 20 शागिर्द हो गए तो काम बढ़ेगा। मेरा जो बीच में मेरा मकसद ये भी था कि कोई भी दीन का काम है उसमें जब मेरे शागिर्द होंगे तो मेरा उसमें हाथ बटेगा, मेरे साथ होंगे किसी भी लिहाज से। अब आप में से एक शागिर्द है मेरा, ठीक है ना, अब वो थंबनेल बनाता है, कासमी नाम है उसका, वो पहले शुरू में पढ़ता था, अब वो मेरे ख्याल में साइड पे हो गया, लेकिन वो मुझे अब थंबनेल बना के भेजता है। जी कासमी ग्राफिक्स, हाँ कासमी ग्राफिक्स। अब वो मुझे थंबनेल बनाता है। अब ये तालिब इल्म का फायदा हो जाता है। जी नौशीन बहन। नहीं हजरत, ये पहले वाला हाथ है, मैंने अभी नहीं उठाया। अच्छा ठीक है। तो मेरा अक्सर ये कि आपको तालीम देना, आगे ही देना, और फिर आपको जहां तक हो सके देखें, मेरी कोशिश है कि मैं जितना कर सकता हूँ, रिजवान साहब की कोशिश है जितना कर सकते हैं, नवाज साहब की कोशिश है, मोहम्मद अहमद की कोशिश है, जितना हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मतलब मेरे पास मुझे बात याद आ गई मुझे, मैं कराची में पढ़ता था, तो वो वहाँ एक ना हमारे साथ एक गोल मटोल गोरा सा लड़का पढ़ता था, बड़ा खूबसूरत सा, वो मेमन था, उसको गर्दान नहीं आती थी, इतना वो एक्टिव नहीं था। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि बेटा हर बंदे का काम नहीं कि वो आलिम बने, तुम ताजिर बनो। वो जो मदरसा चल रहा था वो मेमन चलाते थे, कहते थे जो बंदा जिस काम का है वो उसमें एक्सपर्ट बने, वो अपने दीन में हिस्सा डाले। तो वो उसे कहते थे बेटा तुम जाओ ताजिर बनो, तुम मेमन हो, जो तुम्हारा काम है वो करो, फिर तुम खुद इस पूरे इदारे को चला लोगे, ठीक है ना। अब मुझे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे अक्सर यहाँ कहते हैं कि मैं जिस इलाके में हूँ, लोगों ने यहाँ उस पूरे इलाके में उन्होंने सर्वे किया है, तकरीबन 84 मस्जिदें हैं इर्द गिर्द, 84 मस्जिदों में उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिला जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो और उसने PhD भी की हो। 84 मसाजिद, पूरा एक एरिया है फैसलाबाद का, और फैसलाबाद में मैंने अभी तक ऐसा बंदा कोई नहीं देखा पूरे फैसलाबाद में कि जो कारी भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो और डॉक्टर भी हो, यानी PhD भी उसने की हो। मेरे जहन में अभी तक ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा। मतलब मैं ये गुरूर तकब्बुर से नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दीन दिया, मैंने इसको सीखा, मैंने इसमें मेहनत की है। ना मैं बहुत ज्यादा हाई ज़हीन का हूँ, ना मैं बिल्कुल लो हूँ, मैं दरमियान हूँ, ठीक है ना। तो बताने का साहब आपने कार भी एक जीती थी, जो कह रहे थे हदीस दिखा दें, उन्होंने इनाम रखा था, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। वो कार उसने दावा किया था कि अगर किसी ने मेरे इस सवाल का जवाब दिया तो मैं उसे 18 लाख की कार दूंगा। तो मैंने उसको जवाब दिया था हदीस से, मैंने कहा अब लाओ 18 लाख की कार, बंदा भाग गया, जवाब ही नहीं आया। अरे वो मुअन्नस होते हैं, वो मुअन्नस लोग ऐसे भाग जाते हैं। हाँ वो काफी मेरे ना पीछे दोस्त भी फोन करते रहते, यार आपको कार मिली थी तो अब किधर गई वो। तो ये चीजें होती हैं। अगर एक मशवरा है इस मामले में, जी जो आप वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी देखा और मुफ्ती राशिद साहब का भी देखा है। एक जी मशवरा ये है मेरा हजरत कि जैसे आप वीडियो बनाते हैं जितना भी, उसमें थोड़ा सा पहलू वो डालिए कि जो लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ेंगे कल मैदान महशर में उनका हश्र क्या होगा। जैसे कुरान शरीफ की आयत है कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे, फिर इनके मानने वाले कहेंगे कि तुम्हारे वजह से हम जहन्नम में आए, तो ये कहेंगे कि हमने थोड़ी कहा था तुम हमारे पीछे चले आओ। जी तो जी ये नजरिया हजरत जो है पेश करें अगर लोगों के बीच में, तो और ज्यादा फायदा होगा। जी मैं ये करता हूँ एंड पे ना 2 मिनट में कोशिश करता हूँ कि देखें इसका ये नुकसान है,
इंशाल्लाह अब मजीद इसको हम बढ़ा देंगे कि एंड पे जरूर बताएंगे कि ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे। इन्होंने तो देखे ना किस तरह की बातें की, इन्होंने तो दुश्मन बनाया तुम्हें अल्लाह रसूल का, नबी अलैहिस्सलाम का, जी तो आप ऐसे ये लोगों हदीस के का पीछे जाएंगे। जैसे हदीस के मुनकिर हो गए, जी हदीस के जी मुनकिर के बारे में कुरान के मुनकिर हुए। कुरान फरमाता है कि कुरान का मजाक बढ़ाने वाले काफिर हैं। जी कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, ये वाली आयत तो वो जी बहुत जबरदस्त फिट होगी इनके ऊपर। ये जरूर इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। तो चलें, तो ये बात यहाँ से हुई थी कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, ये खेल कूद नहीं, तमाशा नहीं है, ठीक है ना। वलद दारुल आखिरत खैर, और आखिरत का जो है वो घर बहुत बेहतर है। लिल्लज़ीन, उन लोगों के यत्तकुन जो परहेजगार हैं। अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं कि गौर करो कि आखिरत की जो बात है वो सबसे आला है। आखिरत के बारे में सोचना, आखिरत जो हम पढ़ रहे हैं ये भी आखिरत की बेहतरी के लिए है। बेहतरीन अमल क्या है? तालीम हासिल करना। आपने हदीस पढ़ी होगी ना कि आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्र थोड़ी रह गई, अब मैं क्या करूं फरिश्ते के जरिए? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तालीम हासिल कर, आखिर में भी तेरा काम क्या है? तालीम हासिल कर, इसको और बढ़ा, इसको और पढ़। तो ये बहुत बड़ा शुक्र है मालिक का कि आप दोस्त हमारे साथ हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए, आसानी अता फरमाए सबके लिए। आमीन। मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मिशकातुल मसाबी। हाँ, 605 नंबर हदीस मेरे ख्याल से। अल फसल सानी, तीसरी फसल है अन अली अली से रज़ी अल्लाह अन्हु कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल या अली। अच्छा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? या अली पढ़ेंगे, इसका क्या इराब क्या होगा? जी मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद अहमद। सर या अली अली पढ़ेंगे। या अली, या ठीक है। या अलीयू। देखिए मैंने भी पहले अर्ज की है, हैंड रेज करें, जिसने जवाब देना है ना वो हैंड रेज करें, ठीक है। तो जी सुफियान साहब क्या पढ़ेंगे? हजरत या अलीयू पढ़ेंगे। या अली पढ़ेंगे, अच्छा। ये साजिद रजा या अली क्यों पढ़ेंगे? साजिद या साहब अली, जी जी, क्यों पढ़ेंगे? या अली क्यों पढ़ेंगे? या अलीयू पढ़ेंगे इसलिए कि ये हरफ निदा है। हरफ निदा है। जी नौशीन बहन। जी हजरत यही है कि हर्फ निदा के बाद जो है ना, अगर आता है इससे मारा है तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे। जी 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 सुफियान साहब, सुफियान साहब बताएं। हजरत ये मुफरद है बोल के एक ही नाम है, या अलियो पढ़ेंगे। अगर वो मुजाफ होता तो या अलिया या अलियल मोमिनीन पढ़ते। शाबाश, ठीक है। इसका कहते हैं मुनादा, या जो हर्फ निदा है मुनादा। मुनादा मुफरद मारफा हो तो मंसूब होगा और मरफू होगा। या अलीयू पढ़ेंगे, मुनादा मुफरद मारफा हो, इसे हम पढ़े या जईदू या अल्लाह हो, ठीक है। या अलीयू क्या पढ़ेंगे? या अली, ए अली किसने कहा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया या अली, ए अली, या अली हो गया या अली, या अली, ए अली। सलास, तीन चीजें ला तो आखिरहा, उन्हें तुमने मौखर नहीं करना है अली। जब तीन चीजें आए तो फिर जी इमरान साहब। मैं याद कर रहा था कि या अली जो है ये इसम मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? सवाल है मेरा। जी जी बताएं जी, जवाब दें। हजरत ये हरफे निदा है ना, तो मुनादा, सॉरी नहीं वो है बोला ना, ना हजरत आप। जो 16 अक़साम है उन 16 अक़साम से बात कर रहे हैं। इसम मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, वो जो आपने पढ़ी ना 16 अक़साम, 16 जी अक़साम हजरत आपने ये पढ़ी है ना। जमा मुन्नस सालिम भी आपने पढ़ी है, जमा मुज़क्कर सालिम भी आपने पढ़ी है। तो 16 किस्मों से मुतालिक फरमा रहे इमरान साहब। दलवुन नहीं पढ़ा आपने? दलवुन दलवन मटका। दलवन मरत बे दलविन, वो कौन सा? तो फिर मुफरद मुनसरिफ जारे मजरा जारी मजरा सही नहीं पढ़ा था आपने? सही है, सही जारी मजरा सही है, ठीक हो गया। इसकी मैंने आप लोगों को काफी प्रैक्टिस भी करवाई थी। चले मजीद हो जाएगी, अल्लाह खैर।
तीन चीजें आप अलैहिस्सलाम फरमाए अली, तीन चीजों को मुअख्खर नहीं करना। हमारा जो ये टॉपिक है हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ें कि बाबू ताजिल सला, नमाज जल्दी पढ़ना, टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ लेना, ठीक है। या अली सलातुन, तीन चीजें ला तो आखिरा, उन्हें मुअख्खर नहीं करना। अस्सलात, नमाज, इज़ा अतत, जब टाइम हो जाए बस शुरू कर लो नमाज, ठीक है ना। वल जनाजा तो इज़ा हदरत, जब जनाजा, ठीक है ना, हो तो हदरत। हदरत हदरा भी तो हो सकता था, हदरत क्यों हुआ रिजवान साहब? वल जनाजा तो इज़ा हदरत, जब जनाजा हाजिर हो, जल्दी करें जी। तो जी हजरत ये जनाज़ती ये मुअन्नस है हजरत, इसीलिए हजरत आया है। हाँ शाबाश। अल जनाजा तो मुअन्नस है, इसलिए फेल भी मुअन्नस का आएगा कि उसमें उसकी तरफ तानी लौटेगी ज़मीर। अच्छा, वल अय्यमो, और जो कुंवारी या मतलब शादीशुदा, शादी के लायक है लड़की या बेवा, जब इदा वजद तू पाए लहा, उसके लिए कुफवन, जब उसके लिए बराबरी वाला कोई बंदा पाए तो उसकी शादी कर ले, इसमें देर नहीं करनी। हे अली, आप अलैहिस्सलाम ने हदीस फरमाया। वान इब्न उमर से रिवायत क़ाल, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वक्तुल अव्वल मिन अस्सलाह रिदवानुल्लाह, नमाज का पहला वक्त अल्लाह की रजामंदी है। वाला वक्तुल आखिर, और आखिरी वक्त अफुल, अल्लाह की माफी है। पहले वक्त में नमाज पढ़ना फजीलत है। अब पहले वक्त से मुराद वो वक्त जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। सर्दियों में पहला वक्त कौन सा होगा, गर्मियों में पहला वक्त कौन सा होगा, वो जो हमने पढ़े मुस्तहब, वो उसमें। अब फजर का पहला वक्त नहीं बल्कि आखिर वाला वक्त जो एंड पे है, वो अस्फिर, इस हदीस, इसी चैप्टर की आखिरी हदीस में अस्फिरु बिल फजर, फजर में जो है सफेदी करके पढ़ो, तो वो वक्त अव्वल या बेहतर वक्त वो होगा जिसको नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे। ठीक हो गया। अन उम्मे फरवा से रवायत है, क़ालत, कहते हैं सोइल नबी, आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया अय्युल अमाल अफदल, बेहतरीन अमल क्या है? क़ाल, फरमा अस्सलातुल, नमाज ले अव्वल वक्तिहा, पहले वक्त में नमाज पढ़ना, ठीक है। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन लि वक्तिल आखिर मर्रतैन हत्ता कबदहुल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने एंड तक, ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी वक्त में नमाज पढ़ी हो, ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ता वक्त में आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे जब तक आप इस दुनिया से तशरीफ न ले गए, आपका मामूल ये था। वन अबी अयूब, अबू अयूब से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ाल उम्मती बिखैरिन, उम्मत हमेशा खैरियत का रहेगी, मालम युअखिरुल मगरिब, यहाँ तक के मगरिब को मौखर न करें, इला अन तशबिकत नुजूम, यहाँ तक के सितारे नजर आ जाए। वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम अन युअखिरुल इशा इला सुलुसिल लैल औ निस्फ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत की बात न होती तो मैं उन्हें कहता कि इशा लेट करके पढ़ें, थोड़ा सा देर से इशा पढ़ें। वान मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिमु बिहादिल सलाह, ठीक है, इस नमाज को थोड़ा एंड पे पढ़ो, आखिर में पढ़ो इशा को। फ़इन्नकुम, बेशक तुम, क़द फ़ुद्दिलतुम बिहा, तुम्हें फजीलत दी गई है इस नमाज के सबब, अला साइर उम्म, तमाम उम्मतों पर। वलम तुसल्लिया उम्मतुन क़ब्लकुम, किसी उम्मत ने इससे पहले ये नमाज नहीं पढ़ी। कौन सी नमाज? नमाज इशा। ये तुम्हें इस चीज की फजीलत मिलेगी। जी नौशीन बहन। हजरत ये लेट में जल्दी, ये इसको क्यों मतलब फरमाया गया कि इशा को अगर लेट पढ़ें, फजर को भी लेट में पढ़ें, हाँ, इसकी कोई रीजन? हाँ, उस वक्त मसरूफ लोग होते थे ना, काम काज करके, नहाना धोना सारा कुछ करके, एंड पे फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके, तो ये हम जो 9 बजे पढ़ते वो 10 से 11 बजे पढ़ते थे। मतलब इसमें कोई और ये, क्योंकि ये तो कयामत तक हुक्म है ना, एक जी हदीस जी, में बात। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा लेट पढ़ें। सही, ठीक। जी, वानिम नौबान फिर तो जमात ही निकल जाएगी। नहीं, वो नमाज जमात की बात हो रही है कि आपके मोहल्ले में जमात ही थोड़ा सा लेट हो, जी आपके मोहल्ले में जमात ही सारा लेट हो, यानी बाद जमात ही लेट पढ़नी, अकेले नहीं, अकेले जो हो रही है अपने उसी पर करना है, ठीक है। काल कहते हैं अना आलम बेवक्त हाजिर सलात इशा आखिरा, ठीक है, इशा मगरिब को इशा कहते हैं, इशा आखिरा यानी दूसरी इशा, ठीक है, कि मैं जानता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की नमाज इशा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली लिसुकुतिल कमर लिसलासा, आप अलैहिस्सलाम ने उसको उस वक्त पढ़ते थे जिस तरह तीसरी रात का चांद डूब जाए ना, थोड़ा लेट डूबता है ना वो, उसके बाद आप उसको पढ़ते थे, यानी उन्होंने अंदाजा बता दिया कि इतना, मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 बजे आप समझ लें।
अच्छा, वान राफी बिन खुदैज रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फिरू बिल फज्र, फज्र को सफेदी में पढ़ो, फ़इन्नु आज़मुल अज्र, इसमें सवाब ज्यादा है। वजह क्या है इसकी? वजह ये कि लोग सोए होते हैं ना, तो जल्दी पढ़ने से बंदे अभी सोए हुए हैं, थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे तो लोग वैसे उठाते हैं, आस्ता उठते 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 काफी लोग पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा जो लेट पढ़ते हैं ना उसमें लोग ज्यादा शामिल होते हैं, वहां नमाजी ज्यादा शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरी मस्जिद है जहाँ मैं होता हूँ, मैं तकरीबन लेट ही पढ़ता हूँ, फजर भी लेट होती है और हमारी ईद भी लेट होती है। उसका वजह उसकी ये होती है कि दूसरे लोग ईद बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, रह जाते हैं, तो हम ईद भी लेट पढ़ते हैं। मतलब दूसरों ने 7:15 की है ना, तो हमने 8 करनी है, ठीक है ना। तो आधा पौना घंटा, अभी भी जो रमजान में ये हुआ था, तो लोगों ने दूसरे हमारे जितने भी इर्द गिर्द थी मस्जिदों में, वो 7 बजे हो गई थी, हमने 7:30 बजे रखी थी, तो उनकी जितने भी लोग रह गए थे वो भी हमारे पास आ गए, तो मस्जिद हमारी फुल हो गई, ठीक है जी। तो जगह नहीं थी, मतलब इतने लोग आ गए थे। तो ये तो हमारी अपनी हिकमत अमली है, तो इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें कि उस वक्त नमाज पढ़ाएं जब सारे मुसलमान पहुंच जाएं। खैर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तयम्मुम से मुतालिक हम बात फरमा रहे थे। कितने मसाइल पढ़ लिए थे तयम्मुम के अपने? कोई बोल नहीं रहा। डेली जो किताब आपने पढ़नी है ना, उसको आपने देखना है, उसकी जियारत करनी है, उसको देखना है कि हाँ ये कितनी हमने पढ़ ली थी, अब आज कहाँ से सबक होगा, किधर से शुरू होगा। जी, जो पाकिस्तान के भाई हैं वो अपनी ये किताबें ज़रूर ख़रीद के रखें। मोहम्मद अहमद भाई जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो जो है ना वो ख़रीदें इस किताब, ये जो किताबें हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक राज है किसी का, चलो राज रहने देता हूँ। इंग्लैंड से मुझे एक भाई ने कहा कि आप मुझे भी पढ़ाएं, तो मैंने कहा ठीक है, कहता मैं थोड़ा अकेला पढ़ना चाहता हूँ, मैं राज को राज में रखने देता हूँ। मैं कहा जैसे आपकी मर्जी। तो उसको इतना शौक अल्लाह के बंदे को, अभी उसने पढ़ाई शुरू नहीं की, उसने पूरा सिलेबस ही मंगवा लिया है, 8 साल का पूरा सिलेबस जितना बनता है, ठीक है ना। तो वो मैंने आज देखा वो सिलेबस मकतबे वाले से, मैंने कहा यार वो भेज दे, तो 52,000 का बना। बताने का मकसद ये कि शौक है, अगर शौक हो ना तो फिर आप जरूर ये काम करें कि अपना सिलेबस जो है कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हमारे पास हार्ड कॉपीज में होना चाहिए, वो किताबें हमारे सामने। किताब का मजा कुछ और है, मोबाइल या ये तो हमें मजबूरी है ना, आपको लैपटॉप से पढ़ाते हैं या आपको मोबाइल से पढ़ाते हैं। अमीर मोहम्मद भी मुझे नजर आ रहा है, हारिस भी है, ठीक है ना। जितने भाई खास तौर पर पाकिस्तानी हैं वो ये सिलेबस जो हम पढ़े वो ये किताब आपकी ज़ाय नहीं होगी। मुझे पता है, अभी तक मुझे याद है, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसमें को एजुकेशन होती है, लड़कियां लड़के साथ होते हैं, तो लड़के एक साइड पे होते हैं, लड़कियां दूसरी साइड पे होती हैं। तो एक इत्तेफाक की बात है, तो ये 2000 गालिबन 7 या 8 की बात है, तो मुझे तनख्वाह मिली, तनख्वाह भी मेरी 2000 थी, तो थोड़ी थी, मतलब गुजारा था, तो मुझे शौक था किताब लेने का, तो मैंने किताब ली, वो किताब ली जो मक्के से आई थी, मदीने से आई थी, जिसमें जो स्याह सित्ता मुकम्मल होती है ना, स्याह सित्ता, ये 6 किताबें, बुखारी मुस्लिम ने से 6 किताबों का पूरा एक सेट बन गया था। मैंने देखा की जगह, तो मैंने उनसे कहा कितने की, उनका जी 3,000 की हैं। तो उस वक्त मैंने वो किताब ली 3,000 की। तो दूसरे दिन मैं आगे बैठा हुआ था, पीछे आप जो लड़कियां थी उनमें से 2 आपस में सहेलियां बात कर रही थी, तो एक दूसरी से कह रही थी कि बड़ा अच्छा सूट तूने लिया है, पीला सा सूट बड़ा अच्छा लिया है, तो कितने का लिया है? तो उसने कहा कि ये 2700 का लिया है। तो क्या आप मुझे आप बताएं नौशीन बहन, जो उसने 2700 का सूट लिया था, जी, अब उसके पास होगा? नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जो मेरे पास 3,000 की किताब अभी भी फ्रेश पड़ी हुई है, रखी हुई है, कुतुब जरूर होंगी जी, तो बिल्कुल। ये सदका जारिया है। जब भी आपको थोड़ी सी जेब में थोड़ी सी चीज हो ना। हजरत इसमें एक मसला है, अब जैसे ना हमारे घर में भी बहुत शौक है, हर कोई अलग अलग बुक्स लेता है। अब मसला होता है रखने का, हो जाता है प्रॉब्लम। अभी हमने समझे कि कार्टून भर के मदरसात में दिए गए बुक्स, कि इतने बुक्स हो गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था अब इसको कैसे करें। देखिए ना उसका तरीका, अब आप छोटी सी रेक बनाए, रेक नहीं होते,
जी जी हजरत, लेकिन उससे बात बढ़ गई ना, इतनी बुक्स हो गई क्योंकि हर कोई अलग अलग ले रहा था ना। हाँ अब हाँ, हर कोई अलग अलग ले रहा था बुक्स, कुछ दुनियावी, कुछ दीनी, कुछ किस तरह से। हाँ, वो इतनी आप हो तो बड़ी गई खुश नसीब है, आपके लिए आसानी थी, आप एक कमरा ऊपर बनवा लेते ऊपर, लाइब्रेरी हजरत, टाइप बन जाता। हजरत अब मैं यही सोच रही थी कि इस तरह से कुछ इस करें। तरह हो इतने जाता तो बहुत अच्छा होता। इस तरह अब के मैंने अलग से लाइब्रेरी बनाई है, उसमें जितनी किताबें हैं माशाल्लाह सारी किताबें हैं होना मैंने चाहिए। रखी हुई है, इसको साइड पे रखते हैं। किताब जो है ना, आप किताब किसी को ना दें, इस तरह आपने मदरसे में किताबें भेजी ना, आपने गलती की है। किताब आपको फायदा एक देती है। तफसीरों के बुक्स, हदीस के बुक्स, इतने इतने मैं आपको बता नहीं सकती ना। हमने कहा अब कोई पढ़े तो बेहतर है ना। नहीं नहीं, आप पढ़ रही हैं, आपसे बढ़कर और कौन है। हजरत फिर मैंने अभी ज्वाइन किया ना, ये अभी 1 साल पुरानी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपसे बाद में हुआ है ना, ठीक है चलें। तो आप सब दोस्त जो है ना, थोड़े थोड़े करते करते किताबें किताबें ये जेवर हैं। मैं हकीकत है। किताबें जेवर हैं, जिनके पास किताब है वो कभी भी किताब उठा के उसको देख सकता है, उसमें पढ़ सकता है, ठीक है। सही। तो ये साथ मैं तो निसाबी जमा किताब, करता। निसाबी किताब तो लाजिम है ना पाकिस्तानी जो भाई, बाकी इंडियन जो है हमारे हिंद के, वहाँ अगर उनको मिलती हैं तो वो वहां से कर लें। बाहर से जो है भाई, वो भी अगर कोई दोस्त आते जाते हैं उनसे ये निसाब मंगा लें, पढ़ लें। किताब जो है ना, मकसद ये कि दोनों रोजाना आपने किताब को खोलना है, बाहर शरीयत उसको खोल के देखें कि हाँ ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, इस किताब से मुझे ये हासिल हो रहा है, तयम्मुम के मसाइल मुझे मालूम हो रहे हैं, पीछे वुजू के मसाइल हो गए, पीछे जो है वो पाकी और नापाकी के मसाइल हैं। तो किताब से दोस्ती। जी बिल्कुल सर, सेट बहुत का बैंक मिलता है यहाँ पे। हाँ मिल जाएंगे आपको। वासिफ अली वासिफ का नाम सुना है। जी जी हजरत, हाँ जी उसकी जी किताबें पढ़े उसे, कहते कासिम हैं अली कि बहुत हाँ करते। हाँ, कहते हैं कि हजरत तन्हा में पाकिस्तान पे नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों का मालूम। उसका एक जुमला बड़ा मुझे पसंद है और मैंने काफी दोस्तों को बताया है, वो आप भी लिख लें, ठीक है। कहते हैं तन्हाई सा बेजरर, तन्हाई सा बेजरर, कब्र सा वाइज, किताब सा दोस्त कोई नहीं। किसने लिखा, वो हैंड रेज करे। हजरत मैं लिख हजरत रहा था, तन्हाई सा बेजरत, तन्हाई सा बेजर, कब्र सा वाइज, किताब सा दोस्त कोई नहीं। जी अमीर मोहम्मद, समझ आई इसकी। हजरत खबर था कब्र सा वाइज, वाइज, ठीक है हजरत। कब्र सा कब्र सा कब्र, वाइज, किताब सा दोस्त कोई नहीं। कब्र सवाइज। हाँ, तन्हाई सा बेजर यानी तन्हाई की तरह बेजरर, अकेले हैं तो कोई किसी का नुकसान नहीं, दो बैठे के चुगली गीबत ये वो। तन्हाई सा बेजर, सीन से सा, तन्हाई, ओ शायर है ना, शायरों के अपने अंदाज होते हैं ना बोलने के लिखने के। कहते हैं सही। तन्हाई सा बेजरर ना, तन्हाई सा बेजरर, कब्र सा वाइज, किताब सा दोस्त कोई नहीं। सही। किताब पढ़ें तो आपको जो है वो फायदा ही फायदा देगी। किताब उठाएं, सबसे पहले देखें इस राइटर का नाम क्या है, जब भी किताब उठाएं देखें इस राइटर का नाम क्या है, ठीक है ना। तो उसको इस किताब का नाम क्या है, ये चीजें जब आप बात करेंगे ना, थोड़ा इसमें बड़ा वजन आता है कि मैंने किताब पढ़ी है, मौलाना मुफ्ती अमजद अली साहब की किताब है, बहार शरीयत उसका नाम है। जब ये दो जुमले पहले आप लगाएंगे ना, तो अगले को इस चीज की अहमियत नजर आएगी। मैंने किताब पढ़ी है, मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब है, जिसमें वो 13 किताबों का मजमुआ है, जिसके वो एक राइटर है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब अत-तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, 7वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने इस किताब ये हदीस नकल की है। कितना आ गया, कितना आपके इल्म में इजाफा हो गया, बीच में 3-4 चीजें ये वो। मैं शुरू से मैं अपने दोस्तों से काफी लड़ाई करता रहा हूँ। ये जो मदारिस में लड़के पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़ता था, उस वक्त से मेरी लड़ाई होती थी इनसे। इस बात पे होती थी कि वो कहते थे कि फलां किताब, फलां मौलाना ये कहा, या एक अननोन किताब का नाम लेते थे। मैं कहता था बुखारी का नाम लो, तिरमिजी का नाम लो, जो मेच्योर जो चीजें हैं उनका नाम लो, इनको पढ़ो, इसका आपको फायदा होगा, बजाय कि आप किस्से कहानियां दूसरी चीजें। तो उन चीजों का जो तवज्जो मैं करता था, उसका मुझे फायदा हो रहा है बहुत सारी। तो ये चीजें आप जरूर रखें,
शुरू में मुझे सीरत का बड़ा शौक रहा है। मैंने नफ्सियात की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। माहिर नफ्सियात जो है ना, क्या बोलते हैं नवाज साहब, डेल कार्नेगी बड़ी नाम सुना है अपना, डेल कार्नेगी? जी जी हजरत, बिल्कुल बिल्कुल। क्या तलफ़ुज़ क्या है इसका, डेल कार्नेगी या डेल? हाँ ऐसे ही है। ये नवाज साहब को पता होगा कोई, अगर उन्होंने नाम इंग्लिश ये ज्यादा बोलते होंगे ना। इसकी बुक्स जो है ना, इसकी इसकी 5 बुक्स है बड़ी प्यारी। जी क्या जी, है उनमें उनका नाम, क्या कुलियात है डेल कार्नेगी, खुश रहें जीने दो, और इस तरह काफी सारी चीजें हैं, मैंने सारी पढ़ी हैं। वो पढ़ेंगे ना आपको मजा आएगा, आप कहेंगे यार ये सारी किताबें, सारी बातें इस्लाम की हैं। उलमा के पास है ना ये साइकोलॉजी पढ़ने का भी होता है, उनके पास दूसरी ऐसी चीजें भी होती हैं ना, उनकी क्योंकि किताब है जीना सीखिए, जीना क्या सीखिए। वो जो पढ़ ले ना वो कभी परेशान नहीं होगा। सही सही है। चले बात और बढ़ गई आगे। तो बात हो रही थी बहार शरीयत की जी। अच्छा, ये प्यास का खौफ, ये 349 हो गया था हमारा। प्यास का खौफ हो तो फिर मसाइल हैं। फिर आगे मुसाफिर गुराह में ये भी हो गया था। आगे था 350, ये गुमान के पानी तलाश करने में काफिला नजरों से गायब हो जाएगा या रेल छूट जाएगी, उसमें भी तयम्मुम कर सकता है। ये गुमान के वुजू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज जाती रहेगी, खा यूं कि इमाम पढ़कर फारिग हो जाएगा या जवाल के वक्त आ जाएगा, दोनों सूरतों में तयम्मुम जायज़ है। ईदैन की नमाज में, ठीक है, जनाजे में भी आ गया, आम नमाज में नहीं। वुजू करके ईदैन की नमाज पढ़ रहा था, इसनाए नमाज में बेवुजू हो गया और वुजू करेगा तो वक्त जाता रहेगा या जमात हो चुकेगी तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। गहन की नमाज के लिए भी तयम्मुम जायज़ है, जबकि वुजू करने में गहन खुल जाने या जमात हो जाने का है। वुजू में मशगूल होगा तो ज़ोहर या मगरिब या इशा या जुमा की पहली सुन्नतों का या नमाज चाश्त का वक्त जाता रहेगा तो तयम्मुम करके पढ़ ले, ठीक हो गया। ये सुन्नतों में, ज़ोहर मगरिब इशा की जमा की सुन्नतों के, फर्ज के बारे में नहीं है। गैर वली को नमाज जनाजा फौत हो जाने का खौफ हो तो तयम्मुम जायज़ है, वली को नहीं। गैर वली यानी मैं और कोई भी गया तो अगर हम वुजू करके फिर जनाजे में शामिल हो जाएंगे तो फिर जनाजा तो पढ़ हो जाएगा, 1 मिनट का तो होता है, तो हम फौरन ही जो है वो तयम्मुम करके इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन वली नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर जनाजा होता ही नहीं। वो कहेगा ठहरो भाई मैं वुजू करके आया। आगे वली का जिक्र वही आ गया। आगे एक जनाजे के लिए तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली, फिर दूसरा आ गया, दरमियान इतना वक्त मिला कि वुजू करता तो कर ले, तो मगर न किया, अब वुजू करे तो नमाज हो चुकी होगी, तो उसके लिए अब दोबारा तयम्मुम करे। और अगर वो इतना वक्फा न हो कि वुजू कर सके तो वो पहला तयम्मुम काफी है, ठीक है। आगे पढ़े, इधर अजान हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कोई भाई पढ़ ले, अल्लाह अकबर। पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम का जवाब देने या दुरूद शरीफ वगैरह वज़ाइफ पढ़ने या सोने या बेवजू मस्जिद में जाने या ज़बानी कुरान पढ़ने के लिए तयम्मुम जायज़ है, अगरचा पानी पर कुदरत हो। यानी इन तमाम मसाइल में, सलाम का जवाब देने में, दुरूद शरीफ पढ़ने में, वज़ाइफ पढ़ने में, या सोने या बेवजू मस्जिद में जाने या ज़बानी कुरान पढ़ने के लिए तयम्मुम जायज़ है। जिस पर नमाज फ़र्ज है उसे बग़ैर ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं। जिस पर नहाना फ़र्ज है उसे बग़ैर ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं। हाँ, अगर मजबूरी हो, जैसे डोल रस्सी मस्जिद में हो और कोई ऐसा नहीं जो ला दे, तो तयम्मुम करके जाए और जल्द से जल्द लेकर निकल आए। मस्जिद में सोया था और नहाने के लिए ज़रूरत पड़ गई तो आँख खुलते ही जहाँ सोया था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करके निकल आए। ताख़ीर हराम है। कुरान मजीद छूने के लिए या सजदे तलावत या सजदे शुक्र के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं, जबकि पानी पर कुदरत हो। वक्त इतना तंग हो गया कि वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वज़ू या गुस्ल करके इआदा करना लाजिम है। औरत हैज़ या नफास से पाक हुई और पानी पर कादिर नहीं तो तयम्मुम करे। मुर्दे को अगर गुस्ल ना दे सकें, ख्वाह उस वजह से कि पानी नहीं या उस वजह से कि उसके बदन को हाथ लगाना जायज़ नहीं, जैसे अजनबी औरत या अपनी औरत की मरने के बाद उसे छू नहीं सकता,
तो उसे तयम्मुम कराया जाए। गैर महरम को अगरचा शौहर हो, औरत को तयम्मुम कराने में कपड़ा हाइल होना चाहिए। जुनुब और हायज और मैयत और बेवजू ये सब एक जगह हैं, और किसी ने इतना पानी जो गुस्ल के लिए काफ़ी है लाकर कहा जो चाहे खर्च करे, तो बेहतर ये है कि जुनुब उससे नहाए और मुर्दे को तयम्मुम कराया जाए और दूसरे भी तयम्मुम करें। और अगर कहा कि इसमें तुम सब का हिस्सा है और हर एक को उसमें इतना हिस्सा मिला जो उसके काम के लिए पूरा नहीं, तो चाहिए कि मुर्दे के गुस्ल के लिए अपना अपना हिस्सा दे दें और सब तयम्मुम करें। दो शख्स बेटे और बाप हैं, और किसी ने इतना पानी दिया कि उससे एक का वजू हो सकता है, तो वह पानी बाप के सर्फ में आना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है न पाक मिट्टी के तयम्मुम करे, तो उसे चाहिए कि वक्त नमाज में नमाज की सी सूरत बनाए, यानी तमाम हरकत नमाज बिला नियत नमाज बजा लाए। कोई ऐसा है कि वुजू करता तो पेशाब के कतरे टपकते हैं और तयम्मुम करे तो नहीं, तो उसे लाजिम है कि तयम्मुम करे। इतना पानी मिला जिससे वुजू हो सकता है और उसे नहाने की जरूरत है, तो इस पानी से वुजू कर लेना चाहिए और गुस्ल के लिए तयम्मुम करे। तयम्मुम का तरीका यह है कि दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज पर जो जमीन की किस्म से हो मार कर लौट लें, और ज्यादा गिर्द लग जाए तो झाड़ लें और इसे सारे मुंह का मसा करें। फिर दूसरी मर्तबा यूं ही करें और दोनों हाथों का नाखून से कोहनियों समेत मसा करें। जी वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक तरह होता है। बस ये आगे तयम्मुम में कितने फर्ज हैं ये इंशाल्लाह कल। जी रिजवान साहब घर में उर्दू बोलते हैं? रिजवान साहब जी हज़रत, घर में आप उर्दू बोलते हैं? मेरे घर में कौन सी जबान बोलते हैं? हज़रत तुम लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए। अच्छा तो अच्छा चलें, आप कौन सी बोलते हैं घर में जबान? जाफरी साहब हज़रत उर्दू बोलते। उर्दू बोलते हैं? जी जी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब आइए, ये किताब है हमारे पास हरफे शरह मियत आमिल, हरफे जर रुब्बा। ठीक है, रुब्बा कितने मानी में आता है? तकलील, किल्लत के लिए। मसला रुब्बा राजुलन करीमिन लकीतहु, करीम इज्जत वाले आदमी कम है जिनसे मैं मिला हूँ, यानी कि तकलील किल्लत के लिए। नोट, बाद नुस्खों में रुब्बा कभी तकसीर के लिए भी आता है, जैसे रुब्बा मालिन सरफ्तु, कितना ही माल मैंने खर्च कर लिया। रुब्बा जब तकलील के लिए आता है तो इसका मजरूर और मुतालिक क्या होता है? सवाल जवाब। रुब्बा जब किल्लत के लिए आता है तो उसका मजरूर हमेशा नकरा मौसूफा और उसका मुतालिक हमेशा फेल माजी होता है। रुब्बा जब ज़मीर मुबहम पर दाखिल होता है तो उसकी तमीज़ क्या होती है? सवाल जवाब। रुब्बा जब ज़मीर मुबहम पर दाखिल होता है तो उस सूरत में इसकी तमीज़ सिर्फ नकरा होती है, जो ज़मीर को इबहाम से दूर कर, जैसे रुब्बाहु रजुलन जवादन, सखी आदमी बहुत कम है जिनसे मैं मिला हूँ। ठीक है, यह सवाल जवाब इस किताब में लिखे गए हैं, उसका फायदा ये कि समझने में आसानी हो। वैसे असल किताब में सवाल जवाब नहीं है। ठीक है, आगे हर्फ जर वाऊ, उर्फ जारा वाऊ। ठीक है, ये 13वां हर्फ है। अच्छा, ये दो मानों में आता है, कसम और वाऊ बमन रुब्बा। कसम जैसे वल्लाही लाशरबन्न लबना, अल्लाह की कसम में जरूर दूध पीऊंगा, तो वल्लाही अल्लाह की कसम। क्या वाव इसमें ज़मीर पर दाखिल होते हैं? वाव हत्ता की तरह सिर्फ इसमें ज़ाहिर पर आता है, ज़मीर पर नहीं आता, ये बात बता रहे हैं। एक होता है इसमें ज़ाहिर और एक होता है ज़मीर होती है, जैसे बिही आ गया, ठीक है ना, लहू आ गया, तो ये ज़मीर पर नहीं होगा, ये इसमें ज़ाहिर पर होगा, वल्लाही तल। ठीक है, इसमें अलम हज़रत। हाँ इसमें अलम, ठीक है। वो बना रुब्बा मसलन व आलिमिन यामलु बिइल्मिही, कम है आलिम जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। आई रुब्बा आलिमिन यामलु बिइल्मिही, इन बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो ये वाऊ आपने सीख लिया, इसको आपने दोहराते रहना है, इसका आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा। फैजुल अदब में हमने कल 2-3 सबक पढ़े थे। ठीक है ना, सबक नंबर 4
का खुलासा क्या है, क्या इस सबक नंबर 4 में क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा कि सबक नंबर 4 का खुलासा क्या है, क्या क्या मतलब ये क्या है, इसका हेडिंग क्या है और नीचे 2-3 मिसाल इसमें क्या है? कोई मर्द मोमिन है? जी हजरत। जी मर्द मोमिन आ गया। जी जी नवाज साहब आप अगले सबक बताएं। हाँ जी मर्द मोमिना भी हैं। चलो अच्छा, क्या इसका थीम क्या है इस सबक नंबर 4 की? अब ये है कि इसमें ये बताया गया कि मुब्तदा भी तरकीब इशारा, यानी मुब्तदा जो है वो इशारा मुशारुन इले कैसे होता है। जी नवाज साहब जैसे सही बताया। जी नवाज साहब सही बताया इन्होंने। मुब्तदा का और मुशारुन इलैह तरकीब। ये सबक जो 4 इसकी थीम क्या है? हजरत मैं बताऊं? जी बताएं। हजरत इसमें ये है कि इशारा व मुशार अलैह मिलकर मुब्तदा बनते हैं तरकीब में। हाँ ये बता रहे हैं कि इसमें इशारा और मुशरा मिलकर मुब्तदा बनेंगे, खबर का ताल्लुक वो खबर आगे खुद ही हो जाएगी। जैसे ज़ालिकल किताब, ज़ालिक इसमें इशारा है, अल किताब मुशरन इलैह, इसमें इशारा और मुशरन इलैह मिलके ये मुब्तदा हो जाएगी, सादिकुन ये खबर हो जाएगी। खबर हो जाएगी। सही ठीक बताया आपने, सही हो गया। ठीक है तो इस तरह आगे हाजल फरसु हाजल कलम नफीसुन, हाजा इसमें इशारा है, अल कलम मुशरन इलैह इसमें इशारा मुशरन इलैह से मिलकर मुब्तदा, नफीसुन इसकी हो जाएगी खबर। समझ आ गई सबको? जी जी हजरत। जी अगले की थीम क्या है, आगे कौन बताएगा? अगला जो सबक उसकी थीम क्या है? हजरत मुरक्कब इजाफी है। हाँ क्या है इसकी सबक की थीम क्या है? हजरत पहले मुजाफ मुजाफिले बनकर वो बन रही मुब्तदा, फिर इसके बाद खबर आ रही। हाँ इसका ये है कि मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, आगे खबर हो। जैसे इब्नु ज़ैदिन, इब्नु मुजाफ ज़ैदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, गुलामुन खबर हो जाएगी। ठीक है अब्दुल्लाहि आलिमुन, अब्द मुजाफ, अल्लाह इस्म जलालत मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, आलिमुन खबर। समझ आ गई? चलें अगला सबक उसकी थीम कौन बताएगा? जी इसकी थीम कौन बताएगा? ये हजरत जी इसमें जो है जो खबर है वो इजाफी है। हाँ जो खबर है ना वो इजाफत में आ जाएगी। जैसे ज़ैदिन मुब्तदा है, वालदु खालिदिन, वालदु मुजाफ, खालिदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह से मिलकर खबर बन जाएगी। वहां हमने सबक नंबर 4 में पढ़ा था कि मुजाफ अपने मुजाफ, बल्कि सबक नंबर 5 में कि मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा बनेगा। यहाँ है कि मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये खबर बनेगा। ज़ैदिन मुब्तदा है, देखें पहली मिसाल है, ज़ैदिन मुब्तदा है, वालदु मुजाफ, खालिदिन मुजाफ इलैह। ठीक है वलद मुजाफ, खालिद मुजाफ इलैह, मुजाफ पर मुजाफ इलैह से मिलकर खबर हो जाएगी। ये आपको बता रहे हैं कि इस तरह अरबी कलिमात आते हैं तो आपने जोड़ना कैसे, तरकीब का माना हो। तरकीब कहते हैं चलो एक तरकीब बनाते हैं। कैसे तरकीब बनाएंगे? तरकीब ये कि आज हम जो है ना वो 8 बजे से क्लास शुरू करेंगे। पहला हम सब कुरान पाक का पढ़ेंगे, दूसरा फिर हम पढ़ेंगे मिशकात का, तीसरा हम फिका का पढ़ेंगे। ये इसको कहते हैं तरकीब, जोड़ना। जोड़ के फिर हमने अपना एक सिलेबस, अपना एक रूटीन बना ली कि हाँ ये इस तरह। बात समझ आ रही है ना? ये तरकीब होती है कि लफ्जों को जोड़ के फिर उससे रिजल्ट क्या निकालना, माना कैसे निकालना है। असल में समझ रहे हैं कुरान हदीस को, उसको क्योंकि असल कुरान हदीस अरबी जुबान में है तो अरबी जुबान को समझने के लिए ये सारे उसूल और कवानीन हैं। तो ज़ैदुन मुब्तदा, वलद मुजाफ, खालिद मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर। तो मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया। हादस अब यहाँ आपने इसकी तरकीब करनी है, 2-2 3-3 लाइनें। हाँ जी हादस शबाब साकिन क्या है जी? जी करें तरकीब रिजवान साहब। जी सर ये 6 नंबर पे है जी। अब पहला था ज़ैदुन वालदु खालिदिन, दूसरा नंबर हाज शबाबु साकिनु। तो ये हजरत ये हाजा हाजा इसमें इशारा और अशाबु मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलके मुब्तदा
और साकिनु इसकी खबर। बिल्कुल बेहतरीन हो गया जी जी माशाल्लाह। आगे अल क़रियती, हाँ ये बीच में लफ्ज वैसे ही आ गया। आगे ज़ालिका, ज़ालिका लम्न बरकतिया, हाँ नहीं 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 ये था हादा, हादा शिवा साकिनुल क़रियती, साकिनुल क़रियती, जी 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 साकिनुल क़रियती, ये जो है इजाफत वाली है, साकिनुल क़रियती इजाफत वाली, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलके इसकी खबर बनेगी। जी जी आगे हादा शाबू की इसकी खबर बनेगी। दाल दालिका लबनुल बकरती, दालिका यहाँ पे मुब्तदा बनेगा, अल्लबनुल बकरती ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलके इसकी खबर बनेगी। तो ये खबर अपनी मुब्तदा से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। जी सब दोस्तों को समझ आ गया? किसी को अगर समझ नहीं आई इस बात की हैंड रेज करें। मतलब सबको समझ आ गया। अब आपका कल का काम ये है, कल मैंने आपसे सबसे ये पिछला सबक इसकी भी आपने इसको देखना है, ठीक, इससे पिछला सबक इसको भी आपने देखना है कि ये क्या बन रहा है, मुब्तदा इसमें इशारा किस तरह मिल रहे हैं हो रहा है। उसके पिछला सबक भी आपने, यानी 6 सबक आपने देख के आने हैं ये, ठीक है। चले ये आपका होमवर्क हो जाएगा। कल वीकल आ जाए भी हजरत। हाँ जी जी ये आप लाजमी याद रखें। अच्छा अगली किताब है हमारी जी कौन सी? 10 मुहर्रम की होगी सिर्फ, 10 मुहर्रम तो जुमा बन रहा है ना। हाँ वो तो फिर वैसे ही आ गया ना बीच में, आ गया बीच में, कल तो क्लास है ना। हाँ जी क्लास है बिल्कुल। फैजुल अदब तो हो गया ना। अरे तभी जो है आप कुछ सवाल कर रहे थे, वो मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया तो कट गया था। मैं पूछ रहा था आपके घर में उर्दू ही बोलते हैं? आज़ाद असल में बात है, हमारे इधर जो है कई अल्फाज ऐसे है जो तरीके से नहीं बोले जाते हैं, तो इसीलिए मेरी जबान पे वही वजू ही चढ़ा हुआ है, जबकि वजू है वो। नहीं मैं आपकी मिस्टेक नहीं निकाल रहा, वैसे मालूमात के लिए पूछ रहा। नहीं हजरत बिल्कुल हजरत, आप नहीं तंबी करेंगे तो फिर कौन तंबी करेगा आप। बिल्कुल चले ठीक हो गया। अब ये मोतल फा आपने कल पढ़ा, कहाँ तक पढ़ लिया था इमरान साहब? इमरान साहब ये यहाँ तक पढ़ लिया था ना। इमरान साहब हैं मेरे ख्याल फायदा नंबर 5 हो गया था, फायदा नंबर 5 पूरा हो गया था, ये पेज पूरा हो गया था। आगे जरा नमाज के लिए जरूर आगे जरा इसको दिखाएं और जरा रहमान मोतल आइन के कायदे पढ़ें और इनको थोड़ा सी प्रैक्टिस करवा लें। हाँ ठीक है, वो जरा स्क्रीन शेयर कर देना जरा। अब वहां से लॉगिन हो जाए ना। चलो मैं आ जाता हूँ। वहां से आप लॉगिन हो जाए। जब तक ये पढ़ लें अपना, एजाज साहब आप पढ़ें। एजाज साहब जी साहब बिल्कुल मोतल आइन पढ़ना ना। हाँ जी जी ठहर के पढ़ो, भागो नको। ना भागो नको। मोतल आइन के कायदे। हाँ जी इमरान साहब सुन रहे हैं? इमरान साहब जी जी मैं सुन रहा हूँ। जैसा आप पढ़ें। जो वाव और मुतहरिक हो और उससे पहले मफ्तू हो तो उस वाव और या को अलिफ से बदल दें, जैसे काला का बदल देंगे। जैसे काला की असल में कवाला था और बा के असल में बया था। ठीक है, तो ये तशरीह करें इसकी। ठीक है जी तशरीह करो मैं जब तक खोलूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यहाँ पे कोई हरकत हो और वाव पे अगर कोई हरकत हो और उससे पहले मफ्तू हो यानी कोई जबर हो तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देंगे। जैसे काला की असल में कवाला था और बा की असल में बाया था। दूसरा, जब माजी सलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाव बसबब इज्तिमाए साकिन गिर जाए और वो माजी मस्कूरुल आइन ना हो तो फा कलमा को जम्मा दिया जाएगा। जैसे कुलना की असल में कबलना था, है ना। जी कुलना की असल में कबलना था तो कबलना नहीं पढ़ के कुलना पढ़ेंगे, है ना। ये मकसूरुल आइन हो जाएगा। ना हो तो ठीक है।
तो इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। अब जब जी माजी दोबारा सलासी पढ़िए जरा, मुजर्रद, दोबारा पढ़िए जरा, कायदे को जहन में रखिए। जी 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 जी, सलासी मुजर्रद यानी 3 हुर्फ वाले असली। सलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाव बसबब इज्तिमाई साकिन गिर जाए और वो माजी मस्कूरुल आइन न हो तो फा कलमा को जम्मा दिया जाएगा, है ना। जी जी, कुलना की असल में कवलना था, लेकिन कुलना हुआ जम्मा देकर। या जमा क्यों दिया गया? इसलिए कि सलासी मुजर्रद का आइन कलमा और वाव कलमा, हाँ जी, इसके वजह से। हाँ, ये मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब ने तिलावत माइक है। नहीं की शायद। हाँ हाँ, लग रहा है। हाँ चलें, ये आगे चलें। तीसरा, जब माजी सलासी मुजर्रद का आइन कलमा या बसबब इज्तिमाई साकिन गिर जाए तो फा कलमा को कसरा दिया जाएगा, जैसे ईना की असल में बयाना था। हाँ जी हजरत एक बार देखें इसको, बताएं थोड़ा। जी, मैं जरा 1 मिनट जरा खोलूं तो फिर 1 मिनट जरा जी, मैं ना जरा ऑनलाइन हो जाऊं तो फिर जो है ना। हाँ, थोड़ा समझ में। सर ये मुफ्ती साहब ने स्क्रीन शेयर की हुई थी, आपको शेयर नहीं हो रही, आपको शो नहीं हो रही? नहीं मेरे ना अभी, मैं जरा बस अभी आ जाता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, आपकी वो ज्वाइन कर लेता हूँ मोबाइल से, मैं ऑनलाइन हूँ अभी, बस आ गया। असल में मैं 9 बजे नमाज पढ़ने के लिए गया था, हमारा 9 बजे नमाज हो गई। जी जी, अब ये कायदा आ गया मेरे जी। आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर, जब तीसरा नंबर, सलासी मुजर्रद का आइन कलमा या बसबब इज्तिमाई साकिन गिर जाए तो फा कलमा को कसरा दिया जाएगा, जैसे जी याना की असल में बयाना था। हाँ जी, ये कायदा मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप जो है ना क्या है कि उसको अच्छे तरीके से समाप्त कर हाँ हाँ, लीजिए, ठीक है। समझा दे। मैं जरा पहले मुफ्ती साहब की मैं माइक जरा म्यूट कर दूं, ताकि जो है ना, अब सही हो गया ना। मास्टर, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये आपका तीसरा नंबर कायदा है कि जब माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा या बस सबब इज्तिमा साकिन गिर जाए तो फा कलमे को कसरा दिया जाएगा, जैसे बेइना, ये असल में बेइना था, अच्छा, समझ में आएगा। हाँ, ये असल में क्या हाँ, है, बेइना, ठीक है। अच्छा, असल में क्या था, बायाना था। हमने हाँ, ऊपर कायदा क्या बयान किया, ऊपर हमने कायदा ये बयान किया कि जब सुलासी मुजर्रद, जब माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा क्या हो, यानी उसके माजी के आइन कलमे में या आए, माजी के आइन कलमे में क्या आ जाए, या या आ आ जाए। जाए, तो बस सबब इज्तिमाए साकिनैन गिर हम्म, जाएगा, तो फा कलमे को जो है ना क्या है, कसरा दिया जाएगा। अब देखो ठीक कि है। यहाँ पर जो या होता है ना, या हम्म, जो होता है ये ना या तब बनेगी जब इसके ऊपर जो है ना क्या है कि ये साकिन हो। तो अब वो आइन कलमा भी साकिन, या भी साकिन, तो या गिर गई इज्तिमा साकिन की वजह से। तो अब ये क्या बना, अब हम जो इसको कसरा देंगे, कसरा देंगे। सवाल ये पैदा हाँ, होता है कि भाई इसको कसरा क्यों दिया जाएगा। ऊपर हम्म, आपने पढ़ा कुल न असल में कवल न था, तो सवाल ये हाँ पैदा हाँ, होता है कि भाई वहां पर आप कसरा देते थे, किल ना पढ़ देते, क्या था इसमें, क्या हरज था। हजरत सही। की जो है ये जबर के वो मुकाबिल में जो हरूफ इल्लत अलिफ आता है, या के मुकाबिल में या के मुकाबिल में जेर आता है, और वाव के मुकाबिल में पेश आता है। नहीं नहीं, मैं एक और अर्ज कर रहा हूँ, तो आप जो है उस बात को जरा सुनिए, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने जी सर, ये हरूफ इल्लत या की वजह से।
اصل میں آپ نے یہ یہاں پر ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں 2 نمبر قاعدے میں تھا کہ بھائی کل نہ، 2 نمبر قاعدے میں کیا ہے؟ کل نہ ہے. تیسرے نمبر قاعدے میں بے نہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے پیش دیا، کل نہ دیا، پیش دیا، یہاں پر آپ نے کسرہ دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ قاف کو زبر دے زیر دے دیں، کل نہ کر دیں، اور ادھر بو نہ کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ؟ اگر کسی کو اس قاعدے کے بارے میں پتہ بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ ذرا وہ جس کو پتہ نہیں ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. جی محمد احمد صاحب آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے، مائک میوٹ کر دیں. تو میں دوبارہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی یہ قاعدہ ہے کہ یہ 2 نمبر جو قاعدہ ہے وہاں پر تھا اصل میں یہ جو ہم نے ضمہ دیا اس پر قلنا، اور ادھر جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ اس میں کسرہ دیا گیا بے نہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پر ضمہ کیوں دیا اور اس پر کسرہ کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ یہاں پر ہم نے واو کو حذف کیا، اور واو کے حذف کرنے کے بعد ہم نے ضمہ اس لیے دیا تاکہ یہ جو ضمہ ہے نا یہ واو کی حذفیت پر دلالت کرے، واو کی حذفیت پر دلالت کرے. ہم نے ضمہ اس لیے دیا تاکہ یہ کس پر دلالت کرے؟ واو کی حذفیت پر دلالت کرے. جی سید سفیان صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ، یا اعجاز صاحب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے سر، الحمدللہ. واو کی حذفیت. ہاں، تاکہ یہ جو ضمہ ہے کس پر دلالت کرے گا؟ واو کی حذفیت. ہاں جی محمد احمد صاحب. جی سر. جی ضمہ کیوں دیا گیا؟ جی واو کی وجہ سے. واو کی حذفیت پر دلالت کرے، واو کی وجہ سے نہیں، حذفیت. واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے. واو کی جی وجہ سے نہیں دیا ہم نے. واو کی حذفیت کی وجہ سے. ہاں، واو کے حذف. حذف ہونے پر دلالت کرے. اچھا جی. جی لطیف نواز صاحب آپ ہیں؟ جی سر ہوں. ہاں، تو یہ کل پر جو ضمہ دیا گیا یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ واو کو حذف کرنے کی علامت ہے، وہ حذف کیا اس کے ہاں، لیے. واو کے حذف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ واو کے حذف ہونے کی علامت ہے. تو یہاں پر جو بے نہ میں جو کسرہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یا کی ہر حذفیت کے واسطے. کے حوالے سے. جی نوشین میں آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ جی وہاں پہ واو حذف ہو رہا تھا، یہاں پہ یا حذف ہو رہا ہے، تو یا کی حذفیت کے لیے ہم کسرہ لگا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم دمہ لگا رہے ہاں، ہیں. یہ ضمہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ ضمہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر واو کو حذف کیا گیا ہے، اور کسرہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرے. جی لطیف نواز صاحب. تو اس میں جو اگر کہیں کسی جگہ پہ واو دکھیں گا ہمارے کو، تو وہ اگر پیج دیکھیں گا تو وہاں ہم سمجھیں گے کہ واو کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے، اور ہاں جہاں ہاں کسرہ دکھیں گا تو وہاں یہ سمجھیں گے کہ جو ہے یا کو حذف کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسرہ دیا گیا ہے. ہاں بالکل 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 ٹھیک ہے. جزاک اصل جزاک میں اصل میں یہاں پر میں تھوڑی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو ہوتے ہیں یہ مفتیان کرام جو یہ اردو کی کتابیں لکھتے ہیں نا، تو وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، یہ جو میں نے قاعدہ بیان کیا نا یہ صرف بطرال ایک جو ہے نا کہ فارسی کی کتاب ہے. تو چونکہ ہم تو فارسی وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں ہر ایک چیز کو واضح انداز میں لکھا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ کوئی بندہ، ابھی یہ انہوں نے اس کی اردو کی ہے، یہ سارا منوان اس کو اردو اس کی اردو کی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ اردو کریں تو کم و بیش جو حق ہے، جو قاعدہ ہے، وہ اس کو خود بیان کریں تاکہ جو طلباء جو بیچارے جو ہے نا وہ کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں، کسی پریشانی میں نہ رہیں. بالفرض آپ نے کل نہ دو جو کیا یہ پڑھ لیا اور ادھر بے نہ پڑھ لیا، لیکن یہ کہ آپ کو کیا پتا کہ بھئی پیش کیوں آیا اور کسرہ کیوں آیا. جی لطیف نواز صاحب. اگر میں 25 بار بھی پڑھتا تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا جو آپ 1 منٹ کے اندر ہے نا بات ہے نا بتا دی ان صاحب. جزاک اللہ. وہ بالکل وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے. صحیح ہوا. یہ اصل میں یہ ساری بات میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر نا ہمارے ہاں مرکز تحقیق نہیں ہے. اگر مرکز تحقیق ہو نا تو ہر کتاب کو وہاں پر پیش کیا جائے. اب یہ کتنا انہوں نے بڑا جو ہے نا کیا ہے، مجھے یہ اس قسم کے جب میں قاعدے پڑھتا ہوں نا تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے، مجھے ایک دلی جو ہے نا وہ کوفت ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ یار یہ طلباء کا کیوں نقصان کر رہے ہیں. طلباء کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، طلباء کو فائدہ دینا چاہیے، طلباء کو بتانا چاہیے. جی جو ہے نا کیا ہے کہ جی نوشین بہن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟
अब ये जी किताब मेरे पास शायद मेरे पास मौजूद नहीं है, हजरत या मैं देखता हूँ अगर ये 3 कायदे आज मेरे ख्याल में काफी हैं, जी जी या बिल्कुल, फिर याद भी तो रखने हैं ना हजरत। हाँ। तो बहरहाल ये टेस्ट में आपके सवाल आ सकते हैं, जी जी यहाँ बिल्कुल। पर ये जो है ना क्या है कि ये कुल न पर पेश क्यों आया है और बे न पर कसरा क्यों आया है, ये शायद हो सकता है कि टेस्ट में आपके जो है ना क्या है कि ये सवाल आ जाए। सही और है। हजरत मैंने आज जी नहीं, आप बोलिए, इसके बाद में बोल दो। जी जी आप हुक्म करें जी, हुक्म करें। नहीं हजरत, जब आप क्लास की लिंक डाल रहे हैं ना, टेस्ट की जो लिंक डाल रहे हैं नहीं, वो बहुत देर के बाद आ रही है, यानी संडे के दिन मिली थी, तो हो सका नहीं तो आप नहीं जल्दी बना के रख लीजिए, जुम्मे के दिन भेज बता दीजिए। दिया हजरत ने, कल बता दिया था कि मैं ये इस बार में नहीं सही नहीं रहेगा। नहीं, वो बात मैं बराबर अभी है, से मैं जल्दी भेज दो बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी से मैंने शुरू की हुई है, अभी जी से जी मैंने हजरत, शुरू की हुई, मैंने ना ये अभी से हमारे शुरू की एजाज अहमद तो टेस्ट भी नहीं लिखे, जी। एजाज अहमद तो टेस्ट भी नहीं लिखे हमारे। नहीं नहीं, मैं तो अभी से मैंने शुरू की हुई है, और मैं जो है ना क्या है कि कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है ना क्या है कि मैं रिलैक्स होकर तैयार करूँ। उस दिन ना मुझे तकरीबन कोई यूं आप समझिए कि एक तो ये कि मुझे तो फंक्शंस का पता नहीं चल रहा था, तो दूसरी बात ये कि कंपोजिंग का थोड़ा मसला बन रहा था मेरे साथ, और थोड़ी बहुत जो है ना क्या है कि वो एक मैं पसीना पसीना हो गया था, यूं समझिए आप कि हजरत बिल्कुल पसीना यूट्यूब पसीना हो थोड़ा गया जो था। है उसको जो चीज प्रॉब्लम करा करे उसे एक बार यूट्यूब कर लिया कीजिए, तुरंत पता चल जाता है हर चीज हजरत। हाँ हाँ, ये है बिल्कुल पता चलता है, लेकिन असल में उसको पता चलता है जो कंफर्टेबल हो, जो ना ज्यादा जानता हो, अच्छा, और जो है चैट ना जीपीटी बाद कर लीजिए औकात हजरत, चैट है जी इमरान भाई। है जी जी। हजरत तुम्हें चैट जीपीटी बोल रही। इमरान भाई आपका टेस्ट मुश्किल होता है। मैं आपकी बात नहीं समझा। इमरान भाई आपका हजरत टेस्ट। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर आता है गूगल में। अच्छा सर जी, सर चैट जीपीटी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। आप हजरत कुछ आप भी जो उसमें सर्च सवाल करेंगे लिखें ना तो वो उसका जवाब उससे वेब रिलेटेड दे मेंटेनेंस। देता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। वो कह अच्छा रहे हैं सुफियान भाई कि चैट जीपीटी आप डाउनलोड कर लें। मैं अच्छा अच्छा डाउनलोड नहीं अच्छा बोल रहा डाउनलोड हूँ, नहीं हम में करना, बोले थे डाउनलोड नहीं लिंक पे करना, ये वेब है, लिंक जैसे है गूगल है ना वैसे वो भी है, वेब है अच्छा, वेब। वो ना गूगल वो ब्रांड मुझे जैसा कोई चैट वो जीपीटी। मुझे कोई व्हाट्सएप कर दे कोई, ताकि मुझे फिर पता अरे लगेगा। चैट अरे जीपीटी हजरत लॉगिन उन करना है वो आईडी पे। हजरत ऐसे बनाते रहे ठीक रहेगा, कोई उसमें चैट जीपीटी की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं मैं ऐसे ही इतने सही हूँ, मुश्किल है। मैं मुझे ना एक रास्ते का पता हो, चाहे वो जितना लंबा हो ना, जी मुझे जी कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है, सही बस है हजरत। रास्ते का पता हो बस। आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ चेट मगर जीपीटी ठीक है, चेट जीपीटी ठीक है, ठीक हो गया, अभी सही हो गया सर जी। आपने आज मुझे रिजल्ट खाली जब मिल गया अनाउंस किया मैं तो। मैसेज में तो सारों के नाम के आगे उनके नंबर भी लिखे हुए थे, तो हर नाम के आगे 70 भी लिखा हुआ था। वो क्या माजरा है? जी हाँ ये जी हजरत जी क्या पूछना था 77 मतलब, आपसे का ये आया। सवाल। क्या मतलब? जी अच्छा आज जो आया। सर आप मैसेज में अगर देखें ना, रिजल्ट मिसाल के तौर पर निकाला मोहम्मद है। अहमद लिखा हुआ है एक बोले 72। एक बोले, जो भी जी बोले सर, एक मैं बोले। अहमद बोल रहा हूँ, अहमद बात कर रहा जी हूँ। सर जैसे मिसाल के तौर पर आपने रिजल्ट अनाउंस किया है पूरी क्लास का, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद, मेरे नंबर आए हैं 72/100, लेकिन उसके आगे फिर लिखा हुआ है 70, तो वो हर नाम के आगे 70 लिखा हुआ है। तो ये क्या माजरा है? ये क्या मसला हाँ, है? वो आज मुफ्ती साहब ने मुझे सिखाया, यहाँ पर लैपटॉप पर जो है ना क्या है कि वो जब स्क्रीन शेयर की, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह शेयर कीजिए, तो हो सकता है कि फिर एक जो वो जिसको कॉलम कहते हैं वो शायद बढ़ गया होगा, वो इस वजह से जो है ना क्या है कि 70 आ गया होगा शायद। जी चीज है ठीक है, समझ में गए हम लोग, हमारा लोग का जो हाँ नंबर है, नंबर हाँ बट डिवाइडेड बाय 100 वही हमारा नंबर है, बाकी वो 70 या 60 किसी में आ रहा है, वो मतलब कुछ एरर के वजह से हो गया। हाँ, वो कुछ जो है ना क्या है, असल जी में जी क्या है ठीक। कि जब इंसान जो है ना कि कंप्यूटर पर बैठता, मैं तो अभी मुझे 1 महीना हुआ है या 1.5 महीना हुआ है कि मैंने कंप्यूटर को हाथ लगाया है, और खास करके जो है ना क्या है कि ये मुझे और ज्यादा परेशानी होती है कि उस किताबें जितनी भी हों, चाहे वो अरबी की हो या फारसी की हो, जो भी किताबें सामने पड़ी हो, तो वो टेंशन नहीं होती, वो हम किताब खोल भी लेंगे, हर चीज कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर में किताब खोलना, फिर उसको लिखना, फिर पर्चा बनाना, हर चीज करना, ये फिर जाहिर बात है एक चीज हमारे सामने नहीं गुजरी ना, तो वो हमें कुछ परेशान करती है। नहीं नहीं हजरत, आपको क्या है मसला, वो उसमें थे ना, अब ये नई चीज हो गई, तो अब आपको जो बच्चे जो दौरान चल रहा है, ये दौरा इंटरनेट का, तो हाँ इस पे आपको आना लाजमी है, सीखना नहीं नहीं, लाजमी है चलो आपको ये।
मैं मजीद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आ तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब क्या एक दिन में थोड़ी सीख जाएंगे हजरत। सुनो एक दिन में सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुनो पहले बात तो सुनो। लाजमी क्यों है मान तो आपका इल्म हमको इस्तेफादा रहा, हम तो पाकिस्तान को नहीं आ सकते, तो आप इंटरनेट के द्वारा तो सीख रहे ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो हजरत कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, नहीं कोशिश कर रहे हैं और नहीं धीरे नहीं, धीरे मैं बात बता रहा हूँ, ये भी जरूरत में शामिल हो गया बोल रहा हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ भाई। सुफियान भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? नहीं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ, गुस्सा आप क्या कहूंगा भाई। हजरत जो है अभी सीखेंगे, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज नहीं है हजरत, बहुत आसान है। अब धीरे धीरे आप करते रहेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सुफियान भाई आपको बता दिया था माफी। जी जी हाँ, मेरे ख्याल अभी ये किताब मेरे पास में शायद सरफे आखिरैन मेरे पास शायद नहीं है, तो इस वजह से जो है ना क्या है कि जिसको आज 3 नंबर कायदे तक महदूद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह हम कल जो है मजीद हो सकता है कि कल जो है ना क्या मुस्तफ़ कह रहे थे कि मुझे काम है, शायद हो सकता है कल मैं क्लास ले लूंगा, तो फिर इंशाल्लाह मजीद जो कवायद होंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। फिर हजरत आप ना हजरत से टाइमली पूछ लीजिएगा ना, अगले हफ्ते भी मसला हुआ था, इंशाल्लाह इस हफ्ते ताकि ना हो। अगर हजरत नहीं क्या देते हैं मतलब? तो अगले हाँ नहीं वीक नहीं नहीं, हाँ हाँ वो मसला नहीं होगा, वो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। वो ना मैं टाइम से ही ऑनलाइन हो जाऊंगा इंशाल्लाह। वो जी हजरत साहब का मुझे एक दिन पहले ही बता देते हैं, उसी दिन तो जो है ना क्या है कि उन्होंने अचानक बताया, अभी एक दिन पहले ही बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो अभी हमारी क्लास जो है वो तकरीबन अभी फारसी की क्लास शुरू होगी, क्योंकि जब मैं नमाज मैंने 9 बजे पढ़ ली थी। इमरान तो साहब एक बात जी जी हेलो जी 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 अमीर अहमद साहब जी जी इमरान बताइए। साहब। जी जी हुक्म करें। हाँ इमरान साहब, थोड़ा टेस्ट थोड़ा आसान रखा करें। पिछले हफ्ते मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो मेरे नंबर बहुत कम आए थे, मुश्किल था थोड़ा टेस्ट। अच्छा टेस्ट आसान रखूं जरा। तो मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा, शायद दो तालिब इल्म ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, वो डिसहार्ट ना हो जाएं, इसलिए कह रहा था। हाँ असल में वो यही है कि हम ज्यादा मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा अभी, बस इंशाल्लाह। हजरत ये जो मैं हाँ वो मैं कहता हूँ कि डिसहार्ट ना हो जाए कोई बंदा। नहीं नहीं ठीक है इंशाल्लाह। मोहम्मद